Good morning, everyone. Hello. Good morning, Hello. ma'am. Good morning. अभी तक जो कुछ पढ़ाया है उसमें से कोई क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट्स यू मे आस्क अदरवाइज वी विल बी प्रोसीडिंग. यस. अच्छा, एक और बात बोलनी थी. अब की बार फ्राइडे इज ऑफिशियल हॉलीडे, सो द क्लास विच वी वर ट्राइंग टू रीशेड्यूल ऑन फ्राइडे दैट विल बी देयर ऑन थर्सडे ओनली. ठीक है. वो क्लास आपकी थर्सडे को ही रहेगी. ओनली फॉर दिस थर्सडे. थर्सडे 8 o'clock. ठीक है. आवाज आ रही है सभी को? Yes, ma'am. So we have started module number 4. In module number 4 we were in module number 4 we have completed time frame expansion. Time frame expansion means we have to take different time frames and then we have to find out the sequence of folds. Okay, this will be the sequence of folds, right? Another one was the 9 value algorithm and the complexity for each sequential circuits complexity. So the complexity means, for example, in time frame expansion, we have time frames, different time frames, and it depends on the depth of the flip flops, right? Depth कैसे determine की थी हमने? Depth of the flip flops, sequential circuit का depth, maximum input to primary output कितने number of फ्लिप फ्लॉप्स आ रहे हैं, दैट विल बी द डेप्थ. और आपको दिस मच प्लस वन टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू सॉल्व. ठीक है, मिनिमम दैट मच प्लस वन टाइम फ्रेम. यस और नो? अरे भाई बोलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, अवंतिका, नमन कुमार, अनन्या, कैन यू हियर मी? अर्चिता. Yes, ma'am. तो यस नो एटलीस्ट यू मे टाइप इन द चैट बॉक्स. ओके, वी आई एम ऑडिबल सो दैट आई कैन प्रोसीड. So the complexity means the faults will get duplicated in every time frame. So the complexity is getting increased in case of sequential circuits. Now further we will be starting the scan chain based designs. Scan chain based designs are there for the sequential circuits only. Ma'am, slide is not. Just 1 minute. Visible? Yeah? Yes, ma'am. Okay. So sequential circuits testing is, this is how you will be testing the sequential circuits. Here you have the register, feedback register. So this feedback register, this is the feedback register, set of feedback registers. So these are the primary outputs. These are the primary outputs and these are virtual primary outputs which are fed back through the registers, which are storing the states, previous states of these virtual outputs and then given back through this to the combination logic. So here where we will be putting the scan chain. So general scan testing procedure is like this. What you will be doing is you will be having these scans. This is the scan register we'll call.
Here in intermediate, this red color is the logic, combination logic. And then you are having these scanning flip flops are there. So you can see this flip flop, then the output of this is connected to the input to the next, and the output of that is connected to the input of the next scan flip flop. So total this becomes a scan register. We'll call this as scan register. ये जो आपका shaded portion है, here you can see scan in is there, which might be any bit, and then there is scan out. Okay, so actually shifting will keep on happening depending on the clock. Every clock cycle is shifting this scanning to the next flip flop, and finally you will be having the scan out. ठीक है, इसी को स्कैन रजिस्टर को ही हम स्कैन चेन बोलते हैं. Shall I proceed? Yes, ma'am. So scan testing designs, there are different kinds of scan testing designs. For example, this is the original circuit, the first one. I hope my cursor is visible to you. So Yes, ma'am. this is the primary sequential circuit, right? If you want to insert the scan chain in this, so either you can just reutilize the same original circuits feedback registers, and you can convert that into the scan register. Okay, so here you will be having these pseudo primary outputs, and these were the pseudo primary inputs, and scan in is actually the external input given to the scan register. Now this becomes the scan register, and the scan out is the extra output you are making from the same register. So this becomes this, all the flip flops will become scan registers. So this is one way of testing, scan testing design. ठीक है, यहाँ पे आपने ओरिजिनल रजिस्टर को ही स्कैन रजिस्टर बना दिया. व्हाट इज द सेकंड वन? सेकंड वन यू विल बी हैविंग मल्टीपल स्कैन चेन एंड द पार्शियल स्कैन चेन. मल्टीपल स्कैन चेन का मतलब है आप हर जो फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए एक स्कैन रजिस्टर आप अप्लाई करेंगे. यू कैन सी द नंबर ऑफ प्राइमरी pseudo प्राइमरी आउटपुट्स जितने भी हैं उतनी आपको स्टेट्स चाहिए. सो दोज मेनी स्कैन रजिस्टर्स यू विल बी हैविंग. If these are n number, then n number of scan registers will be replicated. So this is multiple scan chain. This procedure will call multiple scan chain. Partial scan means a few of these you will be putting, like a few of that register only, और कुछ इनको scan register बना देंगे. तो maybe 50%, 40%, or depending upon your requirement, you will be making that. So it depends where the error is and what exactly you want to replicate. So depending on that, the scan register will be partially done. Okay, so this is known as partial scan. So now you are having the scan path. So this is an example how the scanning will happen, how the testing will take place. So you have a combination logic. In this combination logic, you have a set of flip flops which are either giving the means output they are taking and giving back to the input, or maybe in the feed forward network you will be having those set of registers. So what exactly you will be doing is you will be multiplexing those flip flops so that the same number of flip flops can be used as scan flip flops. ठीक है, तो ये देखिए जो भी फ्लिप फ्लॉप्स थे उनसे पहले आपने एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर लगाया है, एंड देयर इज अ सिलेक्शन लाइन इज 1, दैट इज द स्कैन मोड. स्कैन मोड अगर है तो आप देखिए x के बिट है, प्राइमरी इनपुट्स में एक एक्स्ट्रा इनपुट आप जोड़ रहे हैं, तो दैट इज इधर. somebody wants to say something? हाँ, मल्टीपल स्कैन चेन में स्कैन रजिस्टर्स विल बी डिसाइडेड बाय द हाउ मेनी फीडबैक्स आर देयर. मतलब प्राइमरी जो स्यूडो प्राइमरी आउटपुट्स हैं वो कितने इनपुट्स में जा रहे हैं, दैट उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स होंगे. सो उतने ही आपको स्कैन रजिस्टर चाहिए. सुकृति वोरा. Okay, ma'am. ठीक है, so
here these are the primary inputs. ये देखिए, these are the primary inputs x1 to xk, and these are the primary outputs z1 to zn. So the last output, the last input xk and the last output zn, these will be actually multiplexed with the scan path. ठीक है, xk पर जो भी input होगा, that would be deciding whether the कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? Yeah, so selection mode is the one which is extra bit you have introduced. This selection mode is one, means you will be scanning. Okay? So xk, whatever you will be having on xk, that will be pushed to the multiplexer, and that will go through the scan flip flop, and then it will be going back to the combination logic. Okay? And from the combination logic, then it is going forward. Multiplexer. Sudhanshu, please mute your mic. So here the output will go to the combination logic, and then multiplexer will be detecting the same bit, and then it will go to the next flip flop and all. It will be going in this fashion. So it depends on the clock, because every clock you will be shifting whatever the scan in was, that is getting shifted. ठीक है, एक क्लॉक साइकिल में एक ही फ्लिप फ्लॉप को स्कैन करके, एंड देन यू विल बी प्रोसीडिंग दैट. ठीक है. Yes. Yes, ma'am. Okay, so depending on the depth, you need n plus 1 clock cycles in order to propagate the scan in and scan out. Scan out पर जाने के लिए आपको n plus 1 clock cycles are needed. And if you want to make it in a normal way, you want to propagate, then what you will be doing, you will be making select SE is equal to 0. SE is equal to 0 means you are selecting this xk will go inside, and from there whatever the input was needed to come to D flip flop, that is going to come to D flip flop, and then it is going again to the combination logic, and then from there it is coming back through the 0th node, right? So that might be output and inputs are different for different flip flops. So in this fashion, that is working like your normal circuit, which was a sequential circuit. ठीक है. So this is the normal mode. In this normal mode, you can see all primary inputs. The blue color will be active. In the previous case, is scan path. The red colors will be active, and here only the blue colors are active. So you can see the input, it is going to take from the combination logic through the 0th node, and then it is going to the D flip flop. Then from here it is going back to the combination logic, and from 0th node it is coming back to the next flip flop, and so on. And finally the SO is actually one of the primary output. जैसे कि x के आपका वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट था, इसी तरह से SO इज योर वन ऑफ द प्राइमरी आउटपुट. सो द सेम आउटपुट लाइन यू आर रीयूटिलाइजिंग. xk और zn आपके ओरिजिनल प्राइमरी इनपुट्स एंड प्राइमरी आउटपुट्स थे. सो द सेम लाइन्स यू आर मल्टीप्लेक्सिंग इन ऑर्डर टू टेस्ट द सर्किट. ठीक है. सो रीयूटिलाइजेशन विल ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ फॉल्ट्स, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, according to the checkpoint theorem, if there is no branching, then the primary inputs into those many single stacked faults are available, right? So if you are reducing the number of primary inputs or outputs, then it is also reducing. Number of faults are also reducing. But yes, since here multiplexer is introduced, so number of branches are more now. I mean, more numbers you are having, the fault sites are more now. सो ये आपके टेस्ट सीक्वेंस गिवन है, प्राइमरी इनपुट्स गिवन है, देन सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2
and after n plus clock cycles you will be getting all the sequenced. So scan application ये आपका एल्गोरिथम है. You can understand the algorithm. M is the number of scan cells. जो आपका एक फ्लिप फ्लॉप है हम उसको एक स्कैन सेल बोलेंगे. ठीक है. Scan cell is nothing but one flip flop means that is one scan cell, right? And one scan cell will be invoked in a one clock cycle. So if there are m number of flip flops, sorry, one will be scanned in two clock cycles. One आपका primary input देने में, then output propagate करने में. So m plus one clock cycles or greater are needed. So first of all you will be doing the scan cell testing. Selection mode आपको 1 करना पड़ेगा, so that you can select the node 1 from the multiplexer. Scan in of alternating 0 and 1 from the SI input. So 0 and 1 जब आप इसको पुट करते रहेंगे तो एक्चुअली एक साइकिल में आपका ओरिजिनल डेटा आता रहेगा और दूसरे साइकिल में यू आर स्कैनिंग रेस्पॉन्स ऑब्जर्वेशन एट द एसओ आउटपुट. यहाँ पे आपका रेस्पॉन्स ऑब्जर्व करते रहेंगे तो रेस्पॉन्स कैसा है उसके हिसाब से यू विल बी फाइंडिंग आउट वेदर यू हैव डन और नॉट. लॉजिक टेस्टिंग S is equal to 1 data test data scanning from the SI inputs. Then SC is equal to 0, selection mode 0. So this will be the normal uh, behavior of the circuit. And then you will be having the capture cycle, single clock pulse and response observation at primary outputs. So this is how you'll be doing and this is the final step. So selection mode you will be making one for m clock cycles, new data sets scanning from the SIs and simulation is simultaneous scan out. So you'll be getting from SOs. So if there is another test vector, so you have to repeat the procedure, otherwise you have to end it. So this is the algorithmic chart for the scan application. So now this is the delay fault testing. So you can see this circuit. This is a bit important as compared to others. यहाँ पर you will be having two flip flops. Sorry, at two stages you are having flip flops. One is this before this combination circuit and after the combination circuit. So this is the path which we are going to test. Combination path is there which we are going to test. इसको हमें test करना है, ठीक है? So this is the way of writing. How you'll be writing V1 initializing the test vector 1 0 and V2 that is also a sequence. So this is the path activation test vector. So this is in one and in two. So whatever you are having V1 means you are having in one bit and then followed by in two bit. इनपुट 1 और इनपुट 2 पर जो भी बिट है. सो V2 मीन्स सेकेंड साइकिल में आपको क्या इनपुट देना पड़ेगा, दैट इज योर V2. V3 मीन्स थर्ड क्लॉक साइकिल में वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, दैट इज योर V3. तो इसको देखते हैं हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. सो हियर एज्यूम दैट देयर इज ओनली एंड गेट. ये आपका पाथ है. You are getting this path from two sides. One is this upper one flip flop के ऊपर वाले flip flop से आ रहा है, and another input you are getting from the lower flip flop. And this output of this AND gate is going to the output 2 through D flip flop, output D flip flop. ठीक है? So सो इसको डिले पाथ कैलकुलेट करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू. देखो एंड गेट है आपके पास, राइट? दिस इज एंड गेट. सो हियर दिस इज लेट्स से A एंड दिस इज B, दिस इज Z. अगर हमें इसका डिले कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, आई विल पुट
1 here. 1 is the non-controlling value, right? Yes or no? Yes, ma'am. And I will put, let's say 0 here or 1 here. तो अगर मैंने continuously 0 put किया, so previous one was 1 and this one is 0, so output will be 1. This is Z, this is B and this is A. So इसमें delay तो कुछ समझ में ही नहीं आया ना, because continuously the same set of data is there. Likewise, if B was also 1, then 1, 1 and output is also 1. So here also you cannot figure out what was the delay. So for delay, always remember you need a transition. ठीक है, जब आपको ट्रांजिशन मिलेगा तभी तो आउटपुट में ट्रांजिशन रहेगा एंड यू कैन फिगर आउट दैट व्हाट इज द डिले. तो देखिए आपको क्या करना है, एक को तो नॉन कंट्रोलिंग वैल्यू पर रख देना है सो दैट वट एवर इज ट्रांजिशन इज हैपनिंग एट अनदर नोड दैट इज विजिबल एट द आउटपुट. सो ए इज 1 और बी को हमें या तो 0 से 1 ले जाना है या फिर 1 to 0. So this is somewhat like this. This is 1 and B is getting transition from 0 to 1. So 0 to 1 रहेगा तो Z has to follow B. Yes. This is A, this is B और Z आपका आउटपुट था. Z क्या रहेगा? It is going to follow A and B. A आपका 1 है. So it is going to follow B. Right? So this is, let's say you are getting in this fashion. So delay कितना हुआ आपका? This is the delay. Yes. Okay. Likewise, you can take it reverse also. Reverse कैसे लेंगे? Z को आप क्या ले सकते हैं? 1 to 0. So पहले 1 था, then make it 0. So as I told, Z has to follow B because A was 1. So Z इसको follow करेगा. So this was the transition, but because of the delay, Z will be achieving that value a little later. 0 value थोड़ा बाद में आएगा. So now this is the total delay. ओके, समझ में आ गया? ओके, सो हियर यू विल बी हैविंग टू वेक्टर्स. टू वेक्टर्स कैसे बने आपके? फर्स्ट वाला तो ये वाला इनिशियलाइजेशन वाला, सेकंड वाला कैप्चर करने के लिए, बिकॉज इन दिस साइकिल यू आर गोइंग टू कैप्चर कि कब आपका जेड आपका 1 होने वाला है. ठीक है, लाइकवाइज यू कैन टेक दिस. तो ये आपका इनिशियलाइजेशन वेक्टर आ गया, दिस वन, एंड ये आपका कैप्चर वाला आ गया. सो यू कैन टेक V1 यू कैन टेक 1 0 या तो आप 1 0 ले सकते हैं. सो यू विल बी कैप्चरिंग इनिशियलाइजिंग लाइक दिस. और V1 आपको 1 1 भी ले सकते हैं. 1 1 लेंगे सो यू विल बी यूजिंग दिस. सो अगर V1 आपने 1 0 लिया है, इन दैट केस V2 यानी कैप्चर करने वाला क्या आपके पास होना चाहिए? 1 1. एंड अगर आपने 1 0 लिया था, सॉरी 1 1 लिया था V1, देन इट शुड बी 1 0. सो बोथ ऑफ दीज टेस्ट वेक्टर्स आर वर्किंग. ठीक है, समझ में आ गया इनिशियलाइजेशन एंड कैप्चरिंग? आर यू गेटिंग माई वॉइस? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. So in this case they have taken 1 0 इनिशियलाइजेशन एंड द एक्टिवेशन के लिए 1 1 उन्होंने दिया है. एंड नेक्स्ट उसमें दे आर गोइंग टू कैप्चर. नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में दे आर गोइंग टू कैप्चर द रेस्पॉन्स. सो यू कैन सी द रेस्पॉन्स इज हियर. सो एक क्लॉक साइकिल में यू विल बी इनिशियलाइजिंग इट, दूसरे क्लॉक साइकिल में यू विल बी गिविंग 1 1. सो आपका जो भी रेस्पॉन्स था वो यहाँ पर आ गया. ये देखिए जेड पर आ गया. अब Z इज नॉट द प्राइमरी आउटपुट. प्राइमरी आउटपुट आपका आउट2 है. आउट2 आपको कब मिलेगा? जब क्लॉक का एक और साइकिल आएगा. सो दैट्स हाउ यू आर कैप्चरिंग द रेस्पॉन्स. सो ये आपको 3 चीजें 3 क्लॉक साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब 3 क्लॉक साइकिल्स की जब जरूरत पड़ती है इसका मतलब आपका टेस्टिंग का डिले बढ़ता है. राइट, टेस्टिंग का डिले बढ़ता है तो आप क्या करेंगे?
अगर आप कुछ ऐसा करें कि आपका जो लॉन्च एंड कैप्चर वाला है वो फास्ट हो जाए, एक्टिवेशन इज वन थिंग, फ्री फ्लो पर डिपेंड कर रहा है। लॉन्च एंड कैप्चर वाला अगर आपका फास्ट हो जाता है देन योर जॉब इज, मतलब आपका स्कैनिंग जो है, आपका टेस्टिंग जो है वो एक स्पीड पर हो जाएगा। So, in order to address that, you need such type of clock. You can see this clock. Here you are having bigger cycles, and here this is faster frequency. Launch and capture is faster frequency, right? तो ये जो faster frequency है, this is to make the testing or scanning a little bit more speedy. ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? सेम स्कैन रजिस्टर्स जो है उसमें आप ये सिलेक्शन मोड डाला है, सिलेक्शन मोड पहले 1 था, 1 को इन्होंने 0 किया, 0 करके ये लॉन्च इन टेस्टिंग का जो था, लॉन्च इन कैप्चर का था, यू हैव डन इट। सो हाउ यू विल बी अचीविंग दिस क्लॉक? इसके लिए इस पर हम बाद में आएंगे, पहले ये बता देती हूँ आपको फास्ट क्लॉक पल्स जनरेट कैसे करेंगे। सो इट इज गिवन ओवर हियर। ये आपका सिलेक्शन मोड लॉजिक है, इट कैन बी 0 और 1, ठीक है। सो अगर ये 0 होगा, सिलेक्शन मोड लॉजिक इज 0, 0 होगा, सो दिस इज गोइंग 1 ओवर हियर, यहाँ पर क्या जा रहा है आपका 1 जा रहा है, एंड दिस 0 मीन्स वट एवर द एंड गेट इज देयर दैट यू आर गेटिंग एट द क्लॉक। इन दोनों का क्लॉक गेटिंग का एंड पीएलएल क्लॉक का। पीएलएल क्लॉक एक्चुअली आपकी फास्टर क्लॉक है। एक तो आपकी स्कैन क्लॉक है जो कि स्लो है, जिसमें बिग बिग साइकिल्स है ये वाली, और दूसरा पीएलएल क्लॉक है जो कि आपकी ये फास्टर है। पीएलएल स्टैंड्स फॉर फेज लॉक लूप। फेज लॉक लूप आपको हाई प्रिसीजन की हाई फ्रीक्वेंसी देता है। प्रिसीजन इज ऑल्सो हाई एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो हाई, ठीक है। सो पीएलएल से यू कैन सेट द फ्रीक्वेंसी इन ए वेरी गुड फैशन। सो उसमें जीटर स्क्यू वगैरह कुछ नहीं आते हैं। दिस इज द शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का यहाँ पर एक ही लॉजिक है, सो दैट वी कैन प्रोवाइड द फाइनल क्लॉक इन दिस फैशन। आपका जो फाइनल क्लॉक है वो जो ये क्लॉक गेटिंग है, इसके थ्रू यू कैन अचीव दिस पीएलएल क्लॉक ऑल्सो फॉर दैट सब बैंड, जिससे कि आपका लॉन्चर एंड कैप्चर वाला जो स्टेज है उस पर यू कैन यूटिलाइज दिस क्लॉक, ठीक है। ये लॉजिक कैसे काम करेगा? सो दिस इज 0, सिलेक्शन इज 0 हियर। सो जब ये 0 रहेगा, सो हेयर यू विल कीप ऑन पुशिंग 1, यहाँ पर आपका 1 चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 चलता जा रहा है, एंड इट विल डिपेंड ऑन द स्किन क्लॉक। स्किन क्लॉक पर डिपेंड करेगा कि ये जो 1 था ये कितनी दूर तक पुश होगा, ठीक है। सो जब आपने फर्स्ट वाला स्कैन दिया, स्कैन क्लॉक 1 दिया, सो इट वाज सिलेक्शन इनपुट इज ऑल्सो देयर। सिलेक्शन इनपुट, सॉरी इसने पहले 1 दे रखा है, सिलेक्शन इनपुट 1 दे रखा है। सो सिलेक्शन इनपुट 1 में हियर यू आर गेटिंग 1, इसका मतलब आपकी जो क्लॉक है वो स्कैन क्लॉक आ रही है हियर, और फिर इसने 0 कर दिया। अप्रोक्सीमेटली एक क्लॉक साइकिल के बाद दिस इज रीसेट टू 0 सिलेक्शन इनपुट। सो जब ये सिलेक्शन इनपुट 1 था, सो 1 हैज बीन पुश टू हियर, यहाँ पर आपका 1 जा चुका है, बाकी जो प्रीवियस स्टेट्स थी वही है, ठीक है। सो यहाँ पर क्लॉक आपकी सेम क्लॉक आ जाएगी। अब ये देखिए, जब आपका सिलेक्शन इनपुट 0 था, इन दैट केस यू आर गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम हियर, यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से जब आपको आउटपुट मिल रहा है, सो यू कैन सी Q3 एंड Q5 आर 2 क्लॉक्स अवे। 2 क्लॉक साइकिल एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं, राइट। अगर ये दोनों 1 1 थे, देन द आउटपुट इज एक्सपेक्टेड टू बी 0, क्योंकि दिस इज नोट, Q5 का नोट आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन जब आपने 0 to 1 स्विच किया, मे बी एक क्लॉक साइकिल पहले किया, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग द डिफरेंट वैल्यू। इनिशियली इट वाज 0, तो इसका ये 1 आ रहा था, एंड देन यू आर गेटिंग दिस 1। सो 1 1 1, और जैसे ये यहाँ तक रीच आउट करेगा, यहाँ का Q3 का 1 इज गोइंग टू Q5,
वैसे ही ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग जीरो ओवर हियर, यहाँ पर अपने आप ही जीरो आ जाएगा, ठीक है। सो बाय दैट दिस इज द क्लॉक गेटिंग। आपका ये जो एंड गेट का आउटपुट है इसमें इन्होंने ये दिखा भी रखा है दैट दिस इज वन फॉर दिस टाइम पीरियड, और जब ये इस टाइम पीरियड के लिए वन है, सो यू कैन सी दिस इज द पीएलएल क्लॉक एंड दिस इज द क्लॉक गेटिंग, इन दोनों का एंड करना है, देन यू आर गेटिंग दिस हाई फ्रिक्वेंसी क्लॉक, जिससे कि आपका स्कैनिंग फास्टर हो जाएगा। यस, so this is the final clock which you are going to utilize. This CLK is the final clock that you are going to utilize. Now let's come back to this. So here, initialization, then activation, and then capture. These were the three modes. So initialization is must, जो आपको original clock पर कर सकते हैं. Then launch and capture are two things. So this is the delay fault oriented technique. यहाँ पर ये आपका क्लॉक है, इसको यहाँ पर फर्स्ट कर दिया गया है। फर्स्ट करने से आपका क्या होगा, यू विल बी कैप्चरिंग दैट अप्रोक्सीमेटली इन वन क्लॉक साइकिल पीरियड ओनली। जो ओरिजिनल क्लॉक का लगभग एक क्लॉक साइकिल होता है उसी में आप कैप्चर कर पा रहे हैं। एंड देन यू आर गोइंग टू गिव इट दिस सिलेक्शन मोड, आप अब वापस से वन कर सकते हैं। वंस इट इज कैप्चर्ड यू कैन मेक सिलेक्शन मोड वन अगेन so that the next scan can happen. Another example is given. In this case, you can see this is the dead time. Dead time means you cannot utilize this time for anything because launch and capture are needed. And here the clock was 0 and you made this SE is equal to 0 from this to this time. तो आपका मेन यूटिलाइजेशन वाला टाइम था यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम है दिस इज द डेड टाइम, और ये अननेसेसरी आपका डिले इंट्रोड्यूस कर रहा है, दिस फ्रॉम दिस टू दिस अननेसेसरी डिले इज इंट्रोड्यूस्ड। ये आगे भी इसकी स्कैनिंग की टेक्निक्स है। हियर यू आर हैविंग द क्लॉक्ड स्कैन टेक्निक। क्लॉक्ड स्कैन टेक्निक में आपके पास ये जो फ्लिप फ्लॉप है, यू आर हैविंग टू क्लॉक्स, one is scan clock and another one is the D flip flop clock. So दो क्लॉक्स आपको स्पीड अप करने के लिए दी गई है। both of these clocks are working differently at different speeds, जिससे कि आपका जो स्पीड है वो आपका फाइनल स्पीड विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। वन मोर थिंग यू कैन सी ओवर हियर, this SI input is not multiplexed with XK and this SO output is not multiplexed with ZN. So these are standalone inputs and outputs. So you can see, although the speed is increasing, but the complexity is getting increased. जो डी फ्लिप फ्लॉप सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप से काम चल रहा था उसके इनपुट्स एंड आउटपुट्स यू कैन चेक, दीज आर मोर इन दिस केस, right? And of course SI and SO extra inputs and outputs are also needed. So this is creating extra burden on this. ये आपका स्कैन सेट टेक्निक दूसरी टेक्निक है जिसमें यू विल बी हैविंग two selection paths and two selection lines. So these flip flops are actually interrelated. Just see them closely. The output of this flip flop is going here and it is the input to this multiplexer. So if the selection one is one, in that case this is taken, in this case whatever was there stored in these selection inputs, sorry scan flip flops, that has to be taken to this set of flip flops which were actually the original circuit. आपका जो ओरिजिनल सर्किट था उसके जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं that has been given to that, right?
And likewise, the output of this has to be fed to the input of this 0 node, and through this it will be going to the D flip flop when it is in the normal mode. SE2 is in the normal mode. सो इसमें मोड चेंज किया है. सो 10 जब मोड चेंज करेंगे, सो दिस शेडेड पोर्शन इज हाउ द डेटा इज गोइंग टू फ्लो. यहाँ पर 0 है, so 0 means, and here it is 1, so data from here it will follow this path and it is going inside. Whatever it was stored in the previous cycle when it was 0 1, तो वो सारा डेटा आपके यहाँ से स्टोर किया हुआ डेटा it is going to the combination logic. 0 0 you will be capturing. So 0 0 में you will be capturing, and the capturing will happen 0 0 both SE1 and SE0, both of these are 0 0. So this is the capture mode, and you will be taking this path in order to capture it. So through this you are getting, and then this is the primary SO output, so that you can capture whatever was the behavior. ठीक है. So first one is the initialization, then activation, and then this is the capture mode. So dual flip flop architecture. Here you will be using two flip flops. So master flip flop and slave flip flop you will be using. And why two flip flops are needed? दो फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? कोई आइडिया है? Are you there? Yes, Ars, can you hear my voice? Yes, ma'am. आशीष, अभय, अग्रिमा, Yes, ma'am. Yes, अनन्या, ma'am. आदित्य, Yes, अनुज, ma'am. अर्चिता, अर्पण, Yes, ma'am. भूमिका, आयुष, अवंतिका, एकता, दीपिका, Yes, ईशा. ma'am. कम से कम आप वाई टाइप कर दो तो मुझे ये लगता रहे कि आई एम नॉट टॉकिंग टू वॉल्स. चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, जिससे मुझे आइडिया रहता रहे कि ठीक है, यू आर देयर. अभी नहीं, जब कुछ समझ में नहीं आता या समझ में आ रहा है तो टाइप करने के लिए बोला. देखा सभी उठ गए. अब ठीक है, अभी इसको स्टॉप कर दो. हो गया, हो गया. यस. सो हम लोग स्कैन टेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे. डिले स्कैन भी हमने पढ़ लिया है. नाउ ड्यूअल फ्लिप फ्लॉप स्कैन आर्किटेक्चर है. हियर वी विल बी यूजिंग टू फ्लिप फ्लॉप्स, मास्टर एंड स्लैव. सो ये आपका टोटल स्कैन फ्लिप फ्लॉप जो है वो दो फ्लिप फ्लॉप्स में बना हुआ है. ठीक है. और इसके साथ ही एक आपका सिस्टम का फ्लिप फ्लॉप होगा. सो दीज आर कम्युनिकेटिंग इन दिस फैशन. ठीक है. सो दिस इज द सिमिलर वन विच वी हैव डन इन द प्रीवियस केस. यहाँ से कैप्चर होगा, यहाँ से अपडेट होगा सिस्टम वाले से, बिकॉज इट इज गोइंग टू द लॉजिक और फ्रॉम द लॉजिक. ये जो सिस्टम का पार्ट है और ये आपका स्कैनिंग का पार्ट है. सो बोथ ऑफ दीज आर सेपरेट. सो इसलिए आपका थोड़ा डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ये स्कैन टेस्टिंग के इम्पैक्ट है. सिलिकॉन एरिया एंड पिन काउंट कॉस्ट. सिलिकॉन एरिया बढ़ेगा कि घटेगा स्कैन टेस्टिंग में? बढ़ेगा. बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर इंसर्टिंग मोर, राइट. अगर सेम को यूटिलाइज कर रहे हैं फिर भी हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं. सो द मल्टीप्लेक्सर, द नंबर ऑफ मोर फ्लिप फ्लॉप्स, एंड देन पिन काउंट. पिन काउंट मीन्स अगर आपने मल्टीप्लेक्सर एक्स्ट्रा डाला है, सो 4 पिन काउंट्स आर मोर.
एक उसका सिलेक्शन, 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट. सो दीज आर एक्चुअली कॉस्टिंग टू यू. जितने भी पिन काउंट होंगे, इसका मतलब उनकी खुद की भी प्रॉब्लम हो सकती है, एरर हो सकती है, राइट, फॉल्ट हो सकता है. सो स्पीड परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, स्पीड भी बिकॉज you are increasing the circuitry complexity of the circuitry, so the speed performance is degraded. टेस्ट एप्लीकेशन टाइम कोस्ट, टाइम आप देख पा रहे हैं इसमें क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द क्लॉक, सो क्लॉक का स्पीड जो है उस पर यू विल बी डिपेंडिंग द टाइम ऑफ द टेस्टिंग. एक्सेस पावर कंजम्पशन, क्योंकि यहाँ पर you will be having more circuits to consume the power, so excess power consumption generally happens in this case. इसमें इन्होंने इलिस्ट्रेट करके बता रखा है स्कैन चेन शिफ्ट पावर कंजम्पशन. सो ये एक स्कैन चेन का एग्जाम्पल गिवन है. कोई टेस्ट वेक्टर लिया इन्होंने 0 1 1 0 1 0. सो देखो पावर कंजम्पशन कब होता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोसफेट. मोसफेट में पावर कंजम्पशन सीमोस इन्वर्टर की बात करते हैं. चलिए, ये आपका सीमोस इन्वर्टर है, ऐसा ही होता है ना. Now you are having this input, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, this will be the output, right? What will be the power? So in order to find out the power find out करने के लिए क्या करेंगे बताइए. जितना भी करंट जा रहा है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे VDD को. यस और नो, बोलो. यस मैम. अब देखो इसमें पावर जो है आप देख रहे हैं यहां पर जब ये था, सो यू आर गेटिंग दिस. ये क्यों हो रहा था, बिकॉज दिस वाज ऑफ, सॉरी 1 पर दिस वाज ऑफ. जब 1 इनपुट होता है तो P वाज ऑफ, P ऑफ था, देन वट एवर द आउटपुट वाज दैट विल ट्राई टू डिस्चार्ज थ्रू द ग्राउंड. ठीक है, यही था ना. सो दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग दिस. सो इज देयर एनी करंट, IP करंट कुछ है क्या, नहीं है, बिकॉज देर इज नो पाथ फ्रॉम VDD टू ग्राउंड. VDD से ग्राउंड के बीच में कोई पाथ नहीं है, सो देर इज नो करंट फ्लो. सो पावर कितना आएगी इस केस में, यू विल बी हैविंग 0 पावर. यस, likewise when you are having 0 at the input, so output is 1. आउटपुट अगर 1 आपका है, इसका मतलब ये आपका ऑफ था, so that this can charge through this, P के थ्रू ये चार्ज हो जाएगा. So in this case also there is no path from VDD to ground, so that IP is also 0 in this case. So both of the cases when you are having static inputs, the power is 0. Yes or no? Only the sub threshold leakage power is going to happen in those cases. ठीक है? Yes or no? Yes, ma'am. यस मैम. और जब ट्रांजिशन होता है, सो ट्रांजिशन के केस में IP इज, ट्रांजिशन जब होगा, सो यू आर हैविंग द इनपुट फ्रॉम हियर टू हियर, 0 से VDD के बीच में इनपुट होगा. सो फ्रॉम VDD माइनस VTP, VDD माइनस मोड ऑफ VTP एंड VTN से ऊपर जब होगा, देन बोथ ऑफ द ट्रांजिस्टर्स विल बी ऑन. यस और नो? ये वाला ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा, VTN से ज्यादा होगा, वैसे ही ऑन हो जाएगा. ये कब तक ऑन रहेगा, when you are having VDD minus VTP तक जब आपका रहेगा mode of VTP, this transistor becomes on. So from here to here you can say both of the transistors are on. So from here to here you will be having certain value of IP or the power drawn from the power supply. So in this case, if you want to draw, you can draw that you will be getting such kind of, जब भी आपका ट्रांजिशन होगा, लेट्स से दिस इज द ट्रांजिशन, सो यहाँ से यहाँ तक आपका द करंट विल फॉलो
somewhat like this. You will be seeing such kind of peak. और इसको, ये आपका करंट है IP drawn from the VDD. You have to multiply this with VDD in order to get the power. So VDD से multiply करेंगे, so whatever VDD was, इसी shape का आपका power आ जाएगा. It means power you are getting only when the transition is going to happen. Yes or no? समझ में आ रहा है ना? पावर कब Yes, रहेगी? पावर कंजम्पशन इज देयर व्हेन द ट्रांजिशन इज हैपनिंग. देखो, ये तब था जब आपका माइक्रो स्केल के डिवाइसेस होती थी, माइक्रो और हंड्रेड्स ऑफ नैनो. लेकिन अभी जो आप रिसेंटली इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे होंगे, इमर्जिंग डिवाइसेस में पढ़ रहे होंगे, उसमें आज के डेट में क्या है, इन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट सब नैनोमीटर्स डोमेन. सब डेका नैनोमीटर मतलब 10 नैनोमीटर से भी छोटा टेक्नोलॉजी नोड है. सो इन दैट केस आपका सब थ्रेशोल्ड लीकेज बहुत ज्यादा है. सब थ्रेशोल्ड लीकेज इज मोर इंस्टेड ऑफ द ट्रांजिशन जो पावर है उससे भी ज्यादा सब थ्रेशोल्ड लीकेज, क्योंकि ये तो हमेशा लीक होता ही रहेगा. सब थ्रेशोल्ड लीकेज हैपेंस हियर एंड हियर, और ट्रांजिशन आपका जब ट्रांजिट कर रहा है तब. इसको डायनेमिक पावर भी बोलते हैं. वी कॉल दिस एज स्विचिंग और डायनेमिक पावर. ठीक है. सो अभी हमें उसको ध्यान में नहीं रखना है. यू माइट बी थिंकिंग दैट बोथ ऑफ दीज आर कॉन्ट्राडिक्शन. सो दीज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्शन. दिस डिपेंड्स अपॉन द साइज. टेक्नोलॉजी नोड पर डिपेंड करता है. टेक्नोलॉजी नोड रफली यू कैन से इट इज द गेट साइज. ठीक है. सो गेट साइज जब आपका 10 नैनोमीटर से भी छोटा है तो आपका सब थ्रेशोल्ड लीकेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. सो नाउ वी आर कंसिडरिंग इन दिस दैट व्हेनेवर द ट्रांजिशन इज गोइंग टू हैपन देन ओनली द पावर इज देयर. तो आप देखिए, सपोज दिस वाज स्टोर्ड एंड दिस इज द टेस्ट वेक्टर. तो यहाँ पर जहाँ पे भी आपको दो फ्लिप फ्लॉप्स के बीच में 1-0 का एक्सचेंज दिखाई दे रहा है, वहीं पे आप मानेंगे दैट पावर इज गोइंग टू कंज्यूम. तो ये देखिए 1-0 मीन्स पावर इज देयर. 0-1 पावर इज देयर, पावर कंजम्पशन. ये 0 फॉलोड बाय 0, 0 फॉलोड बाय 0 था, तो इसमें कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा. नाउ दिस इज 1, नेक्स्ट वन इज 0, सो पावर कंजम्पशन इज देयर. दिस इज 1 एंड नेक्स्ट इज कमिंग 0, सो पावर कंजम्पशन इज देयर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट one. This is 0-1, so this is power consumption is there. This is 1-0 and this is again input वाला 0 and this one, so power consumption. दूसरा वाला भी अपोजिट है 1-0, so power consumption is there. Now in this case also, in similar fashion, you can see how much power is consumed in every cycle. So you can calculate it from here. ठीक है. So this is the power consumption pattern. It will depend on the test vector which you are using and the scan chain which it is going to hold. स्कैन चेन जो है उसमें कहाँ से डेटा आपका आएगा? You will be having the data from the combination logic. क्योंकि जो प्राइमरी pseudo प्राइमरी इनपुट्स थे, those are going to be stored in the scan chain, right? So वहां से आपका ये पैटर्न वहां से आएगा. It will depend on the circuit. टेस्ट वेक्टर आप दे रहे हैं कैप्चर करने के लिए. So this is how the power consumption is given for each and every cycle. You can see loads of power is consumed. So यहाँ पर ये आपको सिर्फ टेस्ट वेक्टर के लिए पावर कंजम्पशन का गिवन है यहाँ पे, that how it is going to consume the power. So next one is the X bit assignment. X bit assignment का मतलब है, X bit मतलब don't care bits. So ये हम लोग कल करेंगे. आज आपको स्कैन चेन का मोस्टली बता दिया है, तो इसको आप कर लेना. ये स्लाइड्स भी आई थिंक आई हैव शेयर्ड विद यू, सो प्लीज गो थ्रू दीज स्लाइड्स ऑल्सो. इसको आपको थोड़ा सा ज्यादा समझने की जरूरत है. वैसे तो एक ही कंसेप्ट तो सिंपल है इसका, बट द पैटर्न्स आर अ लिटिल बिट डिफरेंट. ठीक है. इसी में पार्शियल स्कैन, मल्टीपल स्कैन, सिंगल स्कैन, सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्कैन चेन. सो उसको आप एक बार ध्यान में रख के यू हैव टू स्टडी इट. ठीक है. एंड
आप असाइनमेंट 1 एंड 2 को सबमिट करवा देना। 2 को आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बना के उन नोट्स को आप सबमिट भी करवा देना। और जो प्रेजेंटेशन होगा वो प्रेजेंटेशन हम लोग 20 के आसपास लेंगे। अनदर थिंग, यू माइट हैव गॉट द मैसेज from the academics that your next semester is going to start from 2nd of Feb and the exams of this semester will be postponed. मैसेज आ गया होगा आपके पास। सो एग्जाम्स जब आप ऑफलाइन यहाँ पर आएंगे फिजिकली, देन द एग्जाम्स विल हैपन और आपका 6th सेमेस्टर विल स्टार्ट फ्रॉम 2nd of Feb। और जो 3rd सेम के बच्चे हैं उनका भी 17 जनवरी से शुरू हो रहा है क्योंकि उनके एग्जाम बाद में होंगे। सो इसको जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि बाद में का मतलब आप थोड़ा भूल जाएंगे। आप 5th और 6th सेमेस्टर का मिक्सअप हो जाएगा तो थोड़ा भूल सकते हैं आप। तो इसलिए जितनी तैयारी कर सकते हो उतनी तैयारी करो। एंड जब एग्जाम होंगे देन इफ टाइम परमिट्स आई विल टेक द एक्स्ट्रा क्लासेस टू रिवाइज इट इफ नीडेड। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हम इसी को स्टॉप कर देते हैं एंड लेट्स मीट टुमारो 9 AM। यस।